Okay, so today we are going to discuss the new chapters, that is photosynthesis in higher plants. बिकॉज कुछ बच्चों के एग्जाम्स में ये आ रहे हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जो है उसको अपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर अपन जो बचा हुआ सेक्शन है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वो करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस 9th 10th में और 7th 8th में जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी किया होगा, बट वो बेसिक इंफॉर्मेशन था कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर डज इट टेक प्लेस, कहाँ पे ये होता है, ठीक है। ये सब छोटे क्वेश्चंस थे, ठीक है। बट वी आर नाउ इन दिस क्लास, इन द 11th क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस इन डिटेल, ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। तो photosynthesis, as you know, what is a photosynthesis? So you know it is the process, it is a biological process which take place in the plants, ठीक है, which take place in the green plants, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर होने वाली क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ओके। एंड इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एज यू नो, फूड इज फॉर्म, ठीक है। ओके, दिस इज अ न्यू चैप्टर बेटा, है ना? ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है। अपन जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स को अपन अभी स्किप कर रहे हैं, उसको बाद में अपन कंप्लीट करेंगे। क्लियर पॉइंट? तो व्हाट इज बेटा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज जो है उसको आप ऑफ कीजिए, आई थिंक। ओके, so what is a photosynthesis? So it's very simple, it is a biological process in which food is synthesized, with the help of light, and some substrate, okay. So let's take examples, or let's take an equation of photosynthesis. So in process of photosynthesis, carbon dioxide and water both get together in the presence of light, inside the chloroplast, and there is a synthesis of simple organic compound, or you can say sugar, C6H12O6, plus also as a byproduct oxygen molecules is synthesized, as well as 6 molecule of water is also synthesized in the process of photosynthesis. So the process of photosynthesis is a biological process in which carbon dioxide and water is utilized as a substrate, okay, in the presence of sunlight and inside the chloroplast. So the plant synthesize glucose molecule, and this glucose molecule is hexose sugar. Hexose, it means 6 carbon compound, hexose sugar. It is also called food, organic food, you can say, food. It acts as a source of food, glucose molecules. So in the process of photosynthesis, 2 molecules act as a substrate, carbon dioxide and water. The carbon dioxide comes from the atmosphere as a gaseous form, and the water molecules comes from the soils by the help of root. Okay, light, the main source of light is sunlight. Okay, so sunlight provides the light energy, and the chloroplast is a green color plastic present in the green parts of plant, है ना? प्लांट के अंदर जो green parts होते हैं वहां पे chloroplast present होता है. Is it clear? And there is a formation of sugar. This is called glucose, simple sugar. Oxygen molecules is synthesized as well as water.
So in the process of photosynthesis, glucose molecule is a main product. याद रखना बेटा, MCQ में पूछा जाएगा. Glucose molecule is main product, but oxygen है ना molecules and the water molecules as a byproduct. It is a secondary product. ठीक है? Completely clear हो गया? तो ये आप समझ आ गए. So all of you know this equation. सब लोग जानते होंगे. So let's Yes. talk about. अब एक और चीज पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है कि है ना the reaction, ठीक है, the process of photosynthesis is a physicochemical. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है physicochemical. physicochemical process है ना, इसको क्या बोलते हैं? physicochemical है ना प्रोसेस बोलते हैं. photosynthesis एक physicochemical. why physicochemical? because light energy acts as a physical and the chemical glucose is synthesized, so that's why it is called physicochemical. Also it is called physico-biochemical. Physico-biochemical, it means light energy is utilized inside the chloroplast, and chloroplast is a living structure, so that's why it is called bio. And chemical organic synthesized, है ना, simple organic sugar is synthesized. What is a substrate? Substrate क्या होता है बेटा? And as you know, in 10th class, in a chemical reaction, है ना, you have a chemical reaction chapter in the 10th class. You have already studied about the chemical reaction. In chemical reaction, the one side, the left side molecules act as a substrate or reactant, or no, these reactant react together and they forms product. So the right side you gain the product. Okay, so substrate and product. So these side act as a substrate. When both react, they forms a product, a particular product, that is called chemical reaction. So it is a chemical reaction, photosynthesis. So physico-biochemical process. Okay. Also, it is anabolic process. The process of photosynthesis is anabolic. As you know, anabolic सब लोग जानते हो है ना. The metabolic reaction is of two types, anabolic and catabolic. Inside the body of living organisms, if anything is synthesized, जब कोई चीजें बनता है तो उसको अपन बोलते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसाइज होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन. सो दिस बोथ सबस्ट्रेट act together, react together and forms glucose molecule. So that's why the process of photosynthesis is an anabolic reaction. It is also called endorganic, endothermic. You can say endothermic. What is the meaning of endothermic? There is a two terms, endothermic and exothermic. सुनना ध्यान से. The meaning of endothermic, it means if in any chemical reaction, if energy is utilized, energy is consumed to operate the chemical reaction, that is called what? Endothermic. It means energy is utilized or energy is stored, energy is consumed, that is called endothermic. So you can see here the light energy is required, the light energy is stored in the form of chemical energy, glucose molecule. So that's why it is an endothermic reaction. Exothermic कब होता? जब energy liberate होती, energy का production होता. So this है ना, on that time this process will called what? Exothermic. But here it is a endothermic process because energy is consumed, light energy is consumed, or it is stored in the form of glucose. Now there is one thing also in the process of photosynthesis. ध्यान सुनना, in the process of photosynthesis, the light energy is converted into chemical energy. The light energy is converted into chemical energy. The light energy of sunlight in the form of photon, it is converted into chemical energy, glucose molecule. So this is also important. So that's why plant is called transducer. एक और वर्ड यूज किया जाता है, प्लांट को ट्रांसड्यूसर बोला जाता है. ट्रांसड्यूसर मतलब कि it means the transformation of energy from the one form to another form. So what does the plant do? The plant does mainly what? They convert light energy into chemical energy. So that's why plant is also called transducer. And as you know, the plant is also called autotrophs or producer. Why? Because they can synthesize their own food. So that's what is called producer. So this is the basic information regarding photosynthesis. इतना क्लियर है सबको? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's move on the next topic of photosynthesis. So this is the basic things. Chalo. Okay, now the next one, let's move to the next importance of photosynthesis. Why photosynthesis is important? तो अगर आप सब लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट करके चैप्टर है वहां पे इनका जो है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन वो जो इंट्रोडक्शन है वो आपको कुछ समझाना चाहता है। वहां पे ये बताया गया है व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट। तो वहां पे बताया गया है कि भाई एवरी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड फूड। सभी ह्यूमन बींग्स को, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ह्यूमन बींग्स को भी किसकी जरूरत होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है पॉइंट? एंड Yes, द sir. एनिमल intakes their food from the plants. Okay, from the plants. But how does the plant synthesize? Where does they get their food? Okay, and from where the plant synthesize, from where the plant synthesize, and how does the plant synthesize their own food? कैसे बनाता है, कहाँ पे बनता है, प्लांट को कहाँ से मिलती है? So it's very simple, है ना? So the plants synthesize their own food by the process of photosynthesis. So the photosynthesis, in photosynthesis, the plant utilize light energy with the help of carbon dioxide and water inside the chloroplast. They form chemical energy glucose molecules. But we cannot do. The animals cannot do this process. The similar kind of process cannot be taken place in the human beings or any other animals. So the capacity or the power or the ability of photosynthesis is only restricted unto the plants. ठीक है बेटा? ओके, चलो ध्यान से सुनना इधर। सो इंपॉर्टेंस, व्हाई फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, द फर्स्ट थिंग्स, इट प्रोड्यूसेस, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फूड। इट प्रोड्यूसेस फूड, और यू कैन से, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड दिस फूड, है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, and these starch is further utilized by the and other living organism, by itself plant as well as by the other living organism. इस ग्लूकोज को पहले स्टोर किया जाता है, इसके बाद इसको कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो हम जब कभी भी किसी प्लांट्स को खाते हैं तो हमको उससे क्या मिल जाती है? वो स्टार्च हमारे अंदर चला जाता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करती है। जब उसी प्लांट्स को कोई एनिमल ईट कर लेता है और जब हम एनिमल को ईट करते हैं तो हमारे अंदर, तो कोई भी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स, है ना, दे हैव अ ग्लूकोज, है ना, दे हैव अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम क्या करते हैं? ईट करते हैं। सो इट प्रोड्यूसेस फूड in the form of glucose molecule, and these glucose molecule is further transfer from the one trophic level to another trophic level, from the one food chain to another food chain. ठीक है, one by one, and it acts as a source of energy for entire living world. जितनी भी लिविंग वर्ल्ड में, मतलब जितने भी क्या है मेंबर है लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, उन सब के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट इज दैट इट, है ना, लिबरेट, इट प्रोड्यूसेस, आल्सो यू कैन से it produces what? It produces oxygen molecules. It produces oxygen molecules as a byproduct. So why it is important? Because we know every living organisms, है ना, breathe any times, at minutes, at in a second, in a minute. ठीक है, and you know, in the process of breathing we inhale oxygen. And what are the importance, what are the function of oxygen? So the oxygen molecules which are mainly taken by the animals or living organisms, these oxygen helps in respiration. These oxygen helps to broken down the food. These oxygen helps to broken down the food to produce ATP, to produce, to regenerate or to generate ATP, to produce ATP or to liberate ATP. So whenever we inhale the oxygen, what are the purpose of oxygen that we inhale? बेटा इंग्लिश में कोई मतलब कंफर्ट हो, बाकी मतलब ऐसा नहीं किसी को नहीं समझ आ रहा हो, ऐसा कोई है क्या? सर ठीक है। नो सर। नो सर। सो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ठीक है, द ऑक्सीजन, है ना, विच इज टेकन बाय द एनिमल्स और all the kind of living organisms, these oxygen, what are the purpose of this oxygen that we inhale? So these oxygen
goes to the our cells, and inside the cells there is a special type of chemical reaction or special type of biological process take place in the cells, and these processes called respiration. So these entire process is called respiration. And why this respiration is important? So in the process of respiration, the main product is ATP as a source of energy, energy currency of the cells. हमारी बॉडी को हर काम करने के लिए लिपिड प्रोटीन, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है, फ्रॉम द स्मॉल टू स्मॉल एंड फ्रॉम द बिगेस्ट टू बिगेस्ट, ऑल द एंटायर फंक्शन इज मेनली अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे आपकी डेली लाइफ में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट इन अवर बॉडी, इन अवर केसेस ऑल्सो द एटीपी एक्ट एज अ करेंसी फॉर द सेल्स, है ना। कोई भी चीज अगर कोई काम करना चाहता है, सो दे नीड्स एटीपी। हम दौड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी सभी काम कर रहे हैं, ऑल द ऑर्गन्स रिक्वायर्ड एटीपी, and these ATP is produced in the process of respiration, and these respiration take place inside the cell, and for for proceeding or for doing this reaction there is a requirement of oxygen molecule, and these oxygen molecules comes from the outside, and the outside oxygen comes from the process of photosynthesis. So that's why, because it gives two essential product to all the living entire world, है ना। तो ये समझ आ गया दो क्यों इंपॉर्टेंट है दो चीज। Yes, sir. Yes, sir. So we eat, we generate, so every living organisms eat for the growth and development, and every living organisms inhale oxygen to produce energy with the help of respiration to do some work. Okay, so this is now the next. Let's come to the next point, that is early experiment. Okay, early experiment, or you can say historical background related to early experiment. बेटा मेरे को ये बताओ कि ये जो टर्म 1 में जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जब ये टर्म्स 2 मतलब टर्म 2 होगा तो उसमें वो नहीं आएगा कि वो भी इंक्लूड होके आएगा, ऐसा कुछ है क्या? सर वो No, नहीं sir, आएगा। टर्म 1 का नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, टर्म 1 का जो भी सिलेबस है वो टर्म 2 में नहीं आएगा, ठीक है ना? नो सर। यस सर। और आपका जो टर्म 2 होने वाला है वो क्या होगा अपना? सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव। यस सर, ऑफलाइन। यस सर, सब्जेक्टिव। ओके, एंड एक और चीज ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर ये कंप्लीट आ रहा है पूरा एंटायर? यस सर। एंटायर टॉपिक। ओके चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं, अपन मूव करते हैं अर्लियर एक्सपेरिमेंट। मतलब कि फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी आज से जो होता है 4 से 500 साल पहले ही जो होता है इनकी डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। बट मोस्ट रिसेंटली जो सबसे ज्यादा जो होता है एविडेंस है ना फोटोसिंथेसिस के ऊपर रिसर्च का अगर हमको देखने को मिलता है वो 18th सेंचुरी से, 18वीं सदी से हमको देखने को मिलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अर्लियर एक्सपेरिमेंट, है ना। मैं आपको स्क्रीन पे जो होता है एनसीईआरटी के अंदर जो इसका जो एक्सपेरिमेंटल क्या है साइंटिफिक वो है एविडेंस है, उसको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, सो दिस वन, द फर्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे लिखा है अर्लियर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अर्लियर एक्सपेरिमेंट, अगर अर्लियर एक्सपेरिमेंट की बात करें हम लोग तो सबसे पहले जो होता है ना, इसको मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि है ना इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी एमसीक्यू में जितना पूछा जाएगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी क्या करते जाना आप लोग, रीड करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनो, अर्लियर एक्सपेरिमेंट मतलब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुआ किस किस टाइम पे, ठीक है। मतलब जो हमारा टाइम स्केल है उसमें कौन सा, तो सबसे पहला देखो 17th सेंचुरी में, है ना, 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले। सो एवरीवन, ठीक है, मार्क इट, ये वाला जोसेफ प्रिस्टले। सो द जोसेफ प्रिस्टले इन 1770 मतलब कि 1770 में परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्स द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। चलो ठीक है, अब मेरी तरफ ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। स्क्रीन की तरफ बस जो वहां पे जो डायग्राम बना हुआ है उसको देखते रहो, स्क्रीन की तरफ जो डायग्राम बना हुआ है बस उसको देखते रहो, ठीक है। बाकी कोई भी आपको रीड नहीं करना है। तो देखो ध्यान से सुनो, जो जोसेफ प्रिस्टले करके साइंटिस्ट था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक क्या किया एक्सपेरिमेंट, किससे रिलेटेड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। तो उन्होंने क्या किया,
सबसे पहले क्या क्या लिया उसको मैं तुमको बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में एक बेल जार लिया। बेल जार क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे, ऐसा ये जो कांच का जो है एक तरीके का ढक्कन जैसा है ना, इट्स लाइक अ सिलिंड्रिकल, है ना। तो एक बेल जार कांच का जो है क्या लिया, इंस्ट्रूमेंट लिया, एक माइस चूहा, एक जो होता है कैंडल, ठीक है, जलती हुई कैंडल, बर्निंग कैंडल, और तीसरा जो होता है मिंट प्लांट। मिंट प्लांट मतलब जो पुदीने का प्लांट होता है, ठीक है, वो, ठीक है, मिंट प्लांट, माइस, बर्निंग कैंडल और बेल जार। इस एक्सपेरिमेंट को बेटा बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो 1770 में, है ना, ये मार्क करो, ये हाईलाइट करो इसको, ईयर को जो है। तो इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनना, इन्होंने बेल जार इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ध्यान से सुनो, इन्होंने दो सिचुएशन लिया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो सिचुएशन लिया। सबसे पहले सिचुएशन में इन्होंने क्या किया कि एक माइस लिए और एक जो है बर्निंग कैंडल, और उसको जो है बेल जार के द्वारा क्या कर दिया, ढक दिए। बेल जार जो था वो ट्रांसपेरेंट था, है ना, ग्लास की बनी हुई है, तो अंदर जो है सनलाइट तो एंटर करता था। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक बर्निंग कैंडल लिया और एक माइस लिया और उसको बेल जार से ढक दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ, है ना, जो बर्निंग कैंडल है वो बुझ गई एंड द माइस, ठीक है, बिकेम डेड, है ना, जो माइस थे, चूहे थे, वो मर गए, ठीक है, वो है ना, उनकी डेथ हो गई। इससे साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो माइस है और बर्निंग कैंडल है वो बेल जार के अंदर का जो क्या है, एयर है, उसको क्या करता है, पल्यूट करता है, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ये उन्होंने ऐसा बोला। फिर दूसरे सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, वो जो बर्निंग कैंडल लिया, एक माइस ली और उसके अंदर एक मिंट प्लांट, है ना, जो मिंट का जो प्लांट होता है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, बेल जार को उसके ऊपर ढक दिया। इस बार क्या हुआ, और इसको लाइट में रखते थे, इस बार क्या हुआ, इस बार जो है ना, बर्निंग कैंडल भी प्रॉपर बर्न हो ही रही थी और माइस जो है प्रॉपर लिविंग थे, है ना, मतलब लाइव थे, जिंदा थे, ना तो माइस की डेथ हुई और ना ही, है ना, जो अपना जो कैंडल है वो बुझ पाएगा। कैंडल भी जल रहा था और माइस भी जो था जिंदा ही थे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, मिंट प्लांट रखने से ऐसा क्या चेंजेस हो गया, अब तुम खुद सोच करके ही देखो। तो ऐसा हुआ, ध्यान से सुनो, जैसे ही हमने मिंट प्लांट रखा तो बर्निंग कैंडल और माइस के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि भाई माइस जो है क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, और जो बर्निंग कैंडल है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा अंदर का, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जलेगा। तो दोनों की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने की वजह से, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेता है, मिंट प्लांट, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं आपको बताया ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है। तो Yes, मिंट sir. प्लांट ने क्या किया, हाँ, मिंट प्लांट ने क्या किया, बर्निंग कैंडल और माइस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको उन्होंने क्या कर लिया, स्टोमेटा के थ्रू ले लिया, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, क्योंकि ये सब कहाँ पे हो रही है, ये सेटअप कहाँ पे लगाया गया है, लाइट के अंदर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द मिंट प्लांट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना, in the presence of sunlight inside the chloroplast, they synthesize glucose molecule and there is also production of oxygen। और तुरंत बताओ मेरे को, वहीं पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी हुआ, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी Yes, तो होगा ना जब फोटोसिंथेसिस होगा तो। yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा तो बर्निंग कैंडल को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो जल रहा है, और जो माइस है उनको भी ऑक्सीजन मिल पाने की वजह से प्रॉपर वहां पे लिविंग है। लेकिन पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था, पहले सिचुएशन में भाई ऑक्सीजन अंदर बाहर आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा बढ़ गया था और ऑक्सीजन कम हो गई थी, खत्म ही हो गया था। इसकी वजह से दोनों की ऑक्सीजन के एब्सेंस में दोनों की डेथ हो गई, मतलब बर्निंग कैंडल बुझ गया और माइस जो है डेथ हो गई। लेकिन दूसरे सिचुएशन में वहां पे मिंट प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वाटर है, सॉरी, जो ऑक्सीजन है उसको जो होता है ना, एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, बेल जार के अंदर छोड़ दिया, जिसकी वजह से दोनों जिंदा थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला बेटा, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो, है ना, जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट है वो जो प्लांट है वो क्या करते हैं भाई, जो पल्यूटेड एयर है उसको क्या करते हैं, फ्रेश करते हैं, है ना, उसको पोल्यूशन से बचाते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, एयर को पल्यूट करते हैं। ऐसा इन्होंने बनाया, और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लाइट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंस के लिए, ऐसा इनका वो था। और साथ ही साथ बेटा ध्यान से सुनो, 1774 में देखो वहां पे एक और ईयर लिखा हुआ है, 1774 में इसी साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है, 1774 में। उसके बाद देखो नीचे नीचे आ जाओ सब लोग,
सब लोग नीचे नीचे आ जाओ। देखो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक दूसरे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, इसको हाईलाइट करो सब लोग, जॉन इंजेनहॉज 1730 टू 1799। ठीक है बेटा, ये भी 17th सेंचुरी, जस्ट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले के साथ ही उसी की कॉन्टेम्पररी एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन इंजेनहॉज। तो सब लोग हाईलाइट करो इसको भाई, जॉन इंजेनहॉज को। जॉन इंजेनहॉज ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये जो साइंटिस्ट का क्या था, ये जो प्रिस्टले का ही जो सेटअप था उसको इन्होंने यूटिलाइज किया। अब जॉन इंजेनहॉज ने क्या किया जोसेफ प्रिस्टले के सेटअप के साथ? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो जोसेफ प्रिस्टले के जो सेटअप थे, एक बार उनको उन्होंने क्या किया, सनलाइट के अंडर रख करके एक्सपेरिमेंट देखा, और दूसरे बार उसको एक डार्क रूम में ले जाकर के छोड़ दिए। इसको, वो पूरी पूरी सेटअप को, मतलब मिंच प्लांट को, कैंडल को और माइस को। जब उन्होंने क्या किया बेटा, मिल्क प्लांट, कैंडल, माइस और बेल जार को लाइट में रखा था, तब तक तो सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको डार्क रूम में, जो होता है डार्क सिचुएशन में रखा, तो वैसे क्या हो गया, फिर से वही सिचुएशन। ठीक है, क्या हुआ, बर्निंग कैंडल बुझ गए और माइस की डेथ हो गई, और जो मिल्क प्लांट था वो क्या हो गए, मुरझा गए। इससे साइंटिस्ट ने जो होता है क्या कंक्लूजन निकाला पता है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट इज रिक्वायर्ड। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट इज रिक्वायर्ड। देखो वहां पे लिखा हुआ है जॉन इंजेनहॉज। ठीक है, इंजेनहॉज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो एक और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है बेटा, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, द जॉन इंजेनहॉज है ना, एज एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद द एक्वेटिक प्लांट। इन्होंने एक प्लांट लिया था जिसका नाम था हाइड्रिला। क्या प्लांट लिया था? हाइड्रिला, एक ग्रीन एल्गी है। सो दैट इन अ ब्राइट सनलाइट द स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स, while the dark they did not. Later he identified these bubbles to be of oxygen. Hence, it showed that it is the only green parts of the plant that could release oxygen. ठीक है, ध्यान से सुना इधर। देखो इधर ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो जो जॉन इंजेनहॉज है, इसको इन्होंने क्या किया था, है ना, ये जो सेटअप था जोसेफ प्रिस्टले का, इनको तो इन्होंने देखा ही देखा, और क्या बताया कि किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किससे बताया? जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को यूज करके। लेकिन लेकिन क्या हुआ, इन्होंने एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक बीकर में एक एक्वेटिक प्लांट्स को लिया, ग्रीन एल्गी को लिया जिसका नाम था हाइड्रिला, और उस ग्रीन एल्गी को क्या कर दिया उन्होंने, उसमें डिप कर दिया, किसमें, वाटर में, बीकर के अंदर, ट्रांसपेरेंट ग्लास में। और कुछ समय बाद उन्होंने क्या देखा कि जब उसको धूप में रखा उन्होंने, ब्राइट इन द डार्क ब्राइट सॉरी इन द ब्राइट सनलाइट में, तब उन्होंने क्या देखने को मिला भाई, उसमें उस पानी के अंदर छोटे छोटे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और वो बबल्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे थे? प्लांट के ग्रीन पार्ट से प्रोड्यूस हो रहे थे। इसलिए उन्होंने बताया कि भाई, है ना, जो प्लांट की जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती ही है। इस बात को किसने प्रूव किया? जॉन इंजेनहॉज ने। कितना क्लियर है सबको, दो एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट में आते हैं, द थर्ड एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी में है। देखो इसके बाद जो है, देखो द थर्ड साइंटिस्ट विद द कॉन्टेम्पररी इन 1854, है ना, 1854 में, जस्ट उसके 30-40 साल बाद जो होता है, नहीं 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 30-40 साल बाद नहीं, हाँ ओके ओके, है ना, इन 1854 अराउंड 50 years आफ्टर 50 years, in 1854 the scientist जूलियस वॉन सेक। क्या था बेटा? साइंटिस्ट जूलियस वॉन सेक। तो ये जो जूलियस वॉन सेक थे, इन्होंने क्या प्रूव किया, इन्होंने एक एविडेंस बताया, क्या कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है ना, क्लोरोप्लास्ट है और स्टार्च, इन तीनों का क्या होता है, एक दूसरे से रिलेशन होता है। मतलब इन्होंने बताया जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते जाता है, वैसे वैसे प्लांट्स के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन बढ़ता है। और ये जो स्टार्च होता है एक्चुअल में कहाँ पे देखने को मिलता है? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में, और वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो साइंटिस्ट ने बताया कि प्लांट एट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे प्रोड्यूसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट जो है अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कहाँ पे? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। ठीक है, और वो है अपना क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि प्लास्टिक में। ठीक है, इन्होंने ये बताया।
फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट साइंटिस्ट है बेटा, द नेक्स्ट साइंटिस्ट, द नेम ऑफ नेक्स्ट साइंटिस्ट इज टी.डब्ल्यू. एंगलमैन. इधर देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन. क्लियर है इतना? तो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या बताया था, 1843 टू 1909, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान से सुनना, मेरे यहाँ पे इधर बोर्ड को देखना सब लोग, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने क्या बताया था, देखो, ओके, सो द टी.डब्ल्यू. एंगलमैन है ना, दे परफॉर्म्स एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एक बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने. उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, उन्होंने जो है एक प्रिज्म लिया, ठीक है, क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, और इधर जो होता है लाइट सोर्सेज रख दिए उन्होंने, एक लाइट की सोर्स रखी जो क्या करते हैं, जो कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब जो सॉरी जो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट इल्यूमिनेट करता है, ठीक है, ये क्या है, ये लाइट सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस करने का काम करता है, टॉर्च बोल सकते हो या फिर कोई भी ठीक है, लाइट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड. इन्होंने यहाँ पे क्या रखा, इन्होंने एक ग्लास के अंदर, इसके अंदर एक ग्लास के अंदर एक पैक्ड ग्लास, एक ग्लास उन्होंने पैक कर दिया, और इसके अंदर इस ग्लास को पैक करके इसमें क्या कर दिया इन्होंने, वाटर डाल दिया, वाटर डिप कर दिया इसके अंदर, ध्यान से सुनना, और इसके अंदर है ना, ये जो ग्लास था ट्रांसपेरेंट ग्लास था, बट ये कंप्लीटली पैक्ड था, ट्रांसपेरेंट ग्लास था बट ये कंप्लीटली क्या था, पैक्ड था, और इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिए, ठीक है, कुछ एल्गी डाल दिए, क्या डाल दिए, कुछ एल्गी, है ना, इस एल्गी का नाम है क्लोरेला, जिस एल्गी को उन्होंने लिया था उस एल्गी का नाम है क्लोरेला, ठीक है, क्या नाम है, क्लोरेला. क्लोरेला इज द ग्रीन एल्गी, है ना बेटा, ग्रीन एल्गी, ठीक है, और इसी के अंदर है ना, इन दिस सस्पेंशन दे ऑल्सो एडेड सम एरोबिक बैक्टीरिया, इन्होंने क्या किया, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए, कहाँ पे, इस सस्पेंशन में जो होता है, इस सस्पेंशन में, ये जो सस्पेंशन लिया था इसके अंदर उन्होंने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए थे. एरोबिक बैक्टीरिया मतलब एनीवन कैन एक्सप्लेन, कोई बता सकता है एरोबिक बैक्टीरिया, आप लोग प्लांट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो, सर ने आपको पढ़ाया है. ऑक्सीजन. हाँ, if any or you can say the bacteria which can only alive in the presence of oxygen, that is called aerobic bacteria, and anaerobic जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करता है, ठीक है. अब ऐसा एक सेटअप तैयार करने के पीछे रीजन क्या था, साइंटिस्ट को कुछ समझना था, ठीक है. अब क्या हुआ देखो, you know the property of prism, the prism scattered the incoming light, है ना, from the other side, दूसरे साइड से, एक साइड से क्या होगा, ये जो लाइट है ये प्रिज्म के अंदर एंट्री करेगी, और प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को जो होता है, ठीक है, डिफरेंट कलर में क्या कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा, डिफरेंट कलर में क्या कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा, ओके. सो देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म. सो मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक विजिबल लाइट, एक व्हाइट लाइट जो होता है ना, व्हाइट कलर के, जैसे ट्यूब लाइट है या फिर जैसे कोई भी जो है आप लाइट यूज करते हो वो लाइट. सो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या हो गया, अलग अलग जो होता है प्रॉपर कलर में, जो जैसे रेनबो होता है उस कलर में जो होता है, विद योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, इतने कलर में क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि आपको पता है प्रिज्म की एक क्वालिटी होती है, क्या करना, लाइट को स्कैटर्ड कर देना, स्प्लिट कर देना. तो ये देखा गया कि भाई अब अलग अलग, आपको पता है विद योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, विद योर, आपको पता है विद योर, विद योर क्या है बेटा, विजिबल लाइट है, सबको पता है कि नहीं, इतना विजिबल लाइट का Yes, sir. कंपोनेंट क्या है, Yes, sir. है ना. एंड अब अगर आप इनकी ये जो मतलब कि आप देखोगे जो सनलाइट है उसके अंदर बहुत सारे टाइप के रेडिएशंस हैं, उनमें से एक रेडिएशन है विजिबल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको हमारी आंखें क्या कर सकती है, सेंस कर सकता है, और जिसकी वजह से हमको ये पूरी दुनिया दिखाई दे रही है ना. तो हम जो भी चीज देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से, विजिबल लाइट की तरफ से. हम एक्सरे को नहीं देख पाते, जस्ट इसके बाद एक्सरे करके रेडिएशन होता है,
सनलाइट में, लेकिन हम वो नहीं देख पाते। अल्ट्रा वायलेट भी होता है, उसको भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी और जो उनका वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है, उसकी वजह से नहीं देख पाते। हमारी जो आंखें हैं वो इस कलर की जो वेवलेंथ है उनको देखने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, उन्हीं को सेंस कर सकता है। और इस है ना जो विजिबल है, विजिबल लाइट है, इनका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक के। 800 नैनोमीटर सबसे ज्यादा रेड कलर का वेवलेंथ होता है। इसी वजह से जो होता है वेवलेंथ मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हो लाइट की जो होता है सबसे ट्रेवलिंग पावर है ना, जितनी ज्यादा क्या होगी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा लाइट की जो होता है ट्रेवल स्पीड होगी, वो दूर तक के जा सकती है। ठीक है, इसी वजह से जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, ताकि दूर से जो है पता लगा सके कि भाई है ना, कि भाई वहां पे क्या है, रेड सिग्नल है, डेंजरस साइन है, जो भी ठीक है, रोकने वाली जो इमरजेंसी। 400 to 800 नैनोमीटर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट विजिबल लाइट आ रहा है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जा रहा है। अब इस 7 कलर में स्प्लिट होने से आप बता सकते हो ये 400 नैनोमीटर सबसे कम वेवलेंथ की लाइट, और ये जो रेड है सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट। इसके बीच में पूरा का पूरा अलग अलग रेंज है ना, 400 से लेकर के वो। तो क्या देखने को मिले, ध्यान से सुनो। अब कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, ये जो एलगी है इसके अंदर क्लोरेला, उसको कॉन्टिन्यूसली क्या मिल रहा है, अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मिल रही है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब साइंटिस्ट ने कुछ घंटों बाद जब क्या किया, इस सस्पेंशन को एग्जामिन किया, तो क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ये देखने को ये मिला कि इस सस्पेंशन में जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा जो होता है कहाँ पे, रेड कलर वाली जो क्या है एलगी है, ऐसे एलगी जो रेड कलर, क्योंकि रेड कलर तो भाई एक ही पोर्शन में आ रहा है, इधर तो आएगा नहीं, एक ही पोर्शन में आ रहा है। तो क्या देखा गया, सबसे ज्यादा जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो रेड कलर वाली जो क्या थी है ना, रेड कलर को यूज करने वाले जो एलगी थे वहां पे एक्यूमुलेट इकट्ठे हुए देखने को मिले, कलेक्ट देखने को मिले एरोबिक बैक्टीरिया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो होता है कहाँ पे, ब्लू कलर में। उसके बाद जो होता है ब्लू कलर में सबसे ज्यादा है ना, मतलब जो एलगी जो ब्लू कलर की लाइट को ले रही थी वहां पे जो होता है एरोबिक बैक्टीरिया का है ना समूह देखा गया, और सबसे ज्यादा तो रेड कलर में और दूसरे सबको सेकेंड टाइम पे जो होता है ब्लू कलर में। तो साइंटिस्ट को बहुत एकदम अजीब सा लगा यार ये कैसे हो रहा है। अब मेरे को बताओ एरोबिक बैक्टीरिया क्या यूज करता है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया को, ऑक्सीजन चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सर एरोबिक बैक्टीरिया, एक मिनट बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया सिंपल सी बात है वहीं पर ही सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगा जहां पे उसको सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा। कहीं ना कहीं रेड कलर वाली जो क्या है, रेड कलर को यूज करने वाले जो एल्गी थे उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या किया होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया होगा। इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का कलेक्शन ज्यादा है। और सेकेंड नंबर पे ब्लू कलर, कहीं ना कहीं रेड कलर के बाद ब्लू कलर वो ऐसा इफेक्टिव स्पेक्ट्रम है जिनको एलगी यूज करने के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया होगा। तो सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा अगर बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन देखने को मिला, एक्यूमुलेट हुआ मतलब इकट्ठे हुए कहाँ पे, ब्लू कलर में। इससे साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया कि रेड कलर का जो क्या है स्पेक्ट्रम है, इसमें फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करेगा, द रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन पे। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में है ना, अगर जितने ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है। कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। तो जितने ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा इसका मतलब क्या चल रहा है, इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस का रेट किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है उसमें सबसे ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंडिकेट कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने इससे कंक्लूजन निकाल लिया कि इस कंक्लूजन से उन्होंने निकाला कि भाई जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें है ना रेड लाइट जो है सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है, मतलब रेड लाइट से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। और उसके बाद जो होता है ब्लू लाइट में, उसके बाद जो होता है ब्लू लाइट में। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया, एक्सन स्पेक्ट्रम बोला गया। क्या बोला गया, एक्सन स्पेक्ट्रम। सर एक्सन, हाँ सर सिर्फ रेड और ब्लू लाइट के जगह ये फोटोसिंथेसिस का रेट क्यों बढ़ा, मतलब बाकी लाइट भी तो। बाकी लाइट का वो बताऊंगा है ना, वो बताऊंगा आगे। अब हम फोटो सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुनना यस सर। ध्यान से, है ना। अब देखो ये तो हो गया, एक्सन स्पेक्ट्रम क्या होता है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, सॉरी द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेयर
the rate of photosynthesis is a maximum, that is called एक्सन स्पेक्ट्रम। तो एक्सन स्पेक्ट्रम किसका ज्यादा है भाई? रेड का, देन फिर ब्लू का। तो एक्सन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का, देन फिर किसका होगा भाई? ब्लू का होगा। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, लेकिन क्या देखा जाता है, एक और स्पेक्ट्रम है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? जब बाद में इसी साइंटिस्ट ने आगे जब क्या किया बेटा, स्टडी किया, तो उनको क्या पता चला कि जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा जो है, सुनना ध्यान से, मेरे वर्ड को स्ट्रेस करना, मेरे वर्ड पे, जो प्लांट होते हैं वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर की जो क्या है ना स्पेक्ट्रम है, उनको सबसे ज्यादा क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्लांट होते हैं या जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। देन फिर उसके बाद रेड कलर को। लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट किसमें ज्यादा होता है? रेड कलर में ज्यादा होता है, ब्लू कलर के कंपेयर में। समझ आ गया ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? ब्लू कलर, देन फिर रेड कलर। मतलब सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किसको किया जाता है? ब्लू कलर को, Blue को। देन उसके बाद रेड कलर को। लेकिन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किससे होती है? रेड कलर से, देन Red. फिर ब्लू कलर से। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया था भाई? कंक्लूजन निकाला था। चलो, तो ये था, वहीं पे आप पूरा पढ़ना, उसको एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है आपको पूरी चीज एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। देखो देखो बेटा, उसके बाद जो होता है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो साइंटिस्ट ने जो होता है क्लेडोफोरा लिखा है। यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए क्लेडोफोरा, जो एलगी को यूज किया था उन्होंने क्लेडोफोरा। तो आपको एनसीईआरटी की अकॉर्डिंगली चलना है। क्लेडोफोरा एक यूनिसेल्युलर एलगी है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया बेटा। अब देखो होता हुआ क्या, देखो लिखा है इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि 1950 1950 तक के आते आते जो है एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट डेवलप हो गई किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, वाटर यूज होती है, लाइट यूज होता है, और एक कार्बोहाइड्रेट बनता है इस फॉर्मूले वाला, प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये कौन सा है ये बाद में पता चला डिटेल में। फिर उसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, देखो क्या लिखा है? a milestone contribution a milestone contributions to the understanding of photosynthesis was made by the microbiologist, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्लेनियस वैन नील। कॉर्लेनियस वैन नील, जिन्होंने 1897 से 1985 तक की इनकी पूरी लाइफ स्पैन थी। हु बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसको हाईलाइट करो भाई, सब लोग हाईलाइट कर लो स्क्रीनशॉट में, और अपने बुक आपके पास होगा बुक तो उसको हाईलाइट कर लो, पूछा जाता है। ठीक है, कि कॉर्लेनियस वैन नील जो एक क्या था भैया? माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इन्होंने एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया को स्टडी किया, जिस बैक्टीरिया का नाम था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कई बार पूछा जा चुका है, और ध्यान से सुनना, 2019 में जो है ये पूछा गया था नीट के एग्जाम में। नीट के एग्जाम में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, और ट्रू करके दिया था। और उसमें एक ऑप्शन था कि जो कॉर्लेनियस वैन नील था, है ना, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। ये भी आ गया था, सोचो। तो फालतू की चीजें भी कभी कभी पूछ ली जाती है ना। अब इससे क्या आपकी नॉलेज का पता चलेगा? उन्होंने क्या किया, ये पूछा था स्टेटमेंट में कि कॉर्लेनियस वैन नील जो है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, और ये कथन सत्य है कि नहीं है आपको बताना था। तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ के गया था प्रॉपर, और उन्होंने इस ये वाले जो पॉइंट है इसको अच्छे से देखा था, उनका क्वेश्चन ठीक हो गया था, करेक्ट हो गया था, अदरवाइज गलत हो गया होगा। ठीक है, तो इन्होंने जिस बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी किया उसको हाईलाइट करो सब लोग, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये पूछा जा चुका है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर, इसके बीच में बेटा सल्फर ऐड कर लो, SULPHUR, सल्फर। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसको हाईलाइट कर लो इनके बीच में। ठीक है, demonstrated that the photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from the suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चलो इसको अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, इधर देखो, है ना, स्क्रीन पर सब लोग देखते रहना। देखो
जो कॉर्लेनियस वैन नील है, इन्होंने एक बात बोल दी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इनका कहना ये था, ध्यान से सुनो, इनका कहना ये था कि भाई जो कॉर्लेनियस वैन नील है, ये इन बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर प्रोड्यूस करता है ना, सल्फर बैक्टीरिया। अगर आप सब लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो बताओ, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? तो मोनेरा किंगडम में आता है। ये कौन से टाइप के बैक्टीरिया है, कोई बता सकता है क्या? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, बताओ। ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। आंसर है बेटा गलत, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जो ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, दैट इज अ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, याद रखो, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया में अगर आप न्यूट्रिशंस को देखोगे तो दो कैटेगरी होती है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फिर दो कैटेगरी में आ जाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड तो खुद बनाता है लेकिन किसकी मदद से होते हैं। कुछ बैक्टीरिया वो भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं लेकिन वो अपना फूड कैसे बनाता है, केमिकल एनर्जी को केमिकल रिड्यूस कॉम्बिनेशन। करके बनाता है। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले राइजोबियम और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, वो किसमें आते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। और ये जो पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया आप जो देख रहे हो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, है ना, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ये ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब किसमें आते हैं, क्रोमेटियम, क्लोरोबियम, ये सब आते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। तो उसको हाईलाइट कर लो सब लोग भाई, वहीं पे लिख लो, आपकी जो बुक्स होंगे या जो भी स्क्रीनशॉट में जो आप लिए हो वहां पे लिख लो कि ये जो ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। लिखो, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ध्यान से सुनना, तो ये जो साइंटिस्ट था कॉर्लेनियस वैन नील, ठीक है, ये जो कॉर्लेनियस वैन नील है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में जब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगाया कि ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, इनका इक्वेशन क्या है। तो साइंटिस्ट ने जो है इनके अंदर जो होने वाले फोटोसिंथेसिस है उसका इक्वेशन दिया इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन दिया। इन्होंने बताया, ध्यान से सुनना, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्होंने, क्योंकि भाई ये हायर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, है ना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस साइंटिस्ट ने किसके ऊपर स्टडी किया था, बैक्टीरिया के ऊपर। और ये बैक्टीरिया कैसा है, फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया है, जो हायर प्लांट से थोड़ा सा अलग है। अभी हमने जो पहला इक्वेशन देखा था ना, ये वाला, CO2 plus H2O is equal to C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। ये तो बेटा ये हायर प्लांट्स के अंदर होने वाले फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन लिखा हुआ है, वो बैक्टीरिया के लिए है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का इक्वेशन है जो इस साइंटिस्ट ने निकाला था कि इसमें ऐसा होता है। तो उन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि प्लांट जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं लेकिन वाटर यूज नहीं करते। ये वाटर के बदले क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं या दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर के बदले क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उन्होंने बताया कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और बदले में क्या बनता है, ग्लूकोज और सल्फर गैस बनता है। ये साइंटिस्ट ने बताया। लेकिन इस बोलोगे सर इससे क्या, इसमें क्या कंक्लूजन है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। इसको माइलस्टोन बोला जाता है। इनकी जो डिस्कवरी थी ना, कॉर्लेनियस वैन नील का जो कंट्रीब्यूशन था उसको माइलस्टोन, मील का पत्थर, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कैसे, ध्यान से सुनो। इन्होंने बताया कि जब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होता है लेकिन वाटर की बदले ये लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है। तो इस हाइड्रोजन, ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रेक होता है तो सल्फर बनती है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे
ये जो सल्फर है जब ये ब्रेक होता है तो क्या बन जाता है, सल्फर गैस बन जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेम क्या होता है प्लांट के अंदर, प्लांट क्या करता है, जो प्लांट है हायर प्लांट है वो H2S की जगह H2O यूज करता है, क्या यूज करता है, H2O यूज करता है। तो इस साइंटिस्ट ने बताया, क्या बताया कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो वाटर से आती है, वो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। लेकिन साइंटिस्ट ने बताया, किसने, कॉर्लेनियस वेनिले, जब वो किसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। उन्होंने क्या देखा था कि ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर ये लोग क्या करते हैं, वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट तो ग्लूकोज ही बनता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पे सल्फर बनता है। तो 100% इस सल्फर की जगह पे प्लांट क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। वाटर। तो 100% प्रोडक्ट जो होता है ना, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है भाई, किससे होता है, वाटर से होता है। वाटर। तो ये है ना, तो ये बात किसने बताई, कॉर्लेनियस वैन नील ने, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मेरे को यह है, बताओ यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O किस में ब्रेक हो रही है, O2 में। तो बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, बताओ। ऑक्सीडेशन। H2O का O2 में बदलना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है भाई, किसी भी रिएक्शन में या तो हाइड्रोजन अलग हो जाए या फिर जो होता है हाँ ऑक्सीजन फ्री हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन, इसके अंदर हाइड्रोजन लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन। अंदर। तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो आप, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। पढ़े हो रेडॉक्स रिएक्शन, यस सर। Yes, sir. the process of photosynthesis is the redox reaction where the where there is a oxidation of water molecules into oxygen and there is a reduction of carbon dioxide molecules into the glucose. So that's why it is called oxidation reduction reaction. तो वहां पे जो हाँ सर अभी आप जो लाइन बोले वो एक बार और बोलिए ना, लिखना है। हाँ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन where, ठीक है, where there is a oxidation of oxygen where oxidation of water into oxygen molecule and reduction of carbon dioxide into glucose molecule, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, और जो वाटर होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें भाई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और वहीं पे एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है किसके बारे में, कॉर्नेलियस वेन नील के रिजल्ट के बारे में। तो वहां पे लिखा है कि हाइड्रोजन जो होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से निकल रहा है भाई, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ से निकल के ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जा रहा है। तो भाई देखो सुनो ध्यान से, वाटर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वाटर, यस सर। वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ, तो जब किसी है ना, जब किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है कि नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, ये अपना हाइड्रोजन किसको, हाँ ये अपना हाइड्रोजन किसको दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हाँ, इसको लेकर के, हाइड्रोजन को लेकर के ऑक्सीजन के साथ क्या बना ले रहा है, ग्लूकोज बना ले रहा है। तो इसी को वहां पे लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो हाइड्रोजन डोनर है वो एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो ग्लूकोज बनाने का काम करता है। एनसीईआरटी में वो पॉइंट लिखी हुई है। क्लियर है पॉइंट इतना, यस सर। चलो। तो ये था कॉर्नेलियस वैन नील का एक्सपेरिमेंट, बट दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, दिस वाज नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील। इट वाज जस्ट एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये केवल और केवल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था। So after the later, the next scientist, 3 scientists come, Ruben, Hasid and Common। इनके बारे में साइंटिस्ट
मतलब एनसीईआरटी में लिखी नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में बात जरूर किया है नीचे नीचे। इन्होंने बताया, ये जो साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट है ना, इन्होंने क्या किया, रेडियो आइसोटोप यूज किया। ठीक है ना, क्या यूज किया, रेडियो आइसोटोप। इसका रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन 16 का। ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप होता है ऑक्सीजन 18, O18 है ना, इसका जो मास होता है वो 18 और O16। तो ये रेडियो आइसोटोप है। किसका आइसोटोप है, ऑक्सीजन का। भाई ऑक्सीजन का क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक? Yes, sir. तो ये आइसोटोप हुआ। आइसोबार किसको बोलते हैं, जब मास बराबर हो बट एटॉमिक नंबर अलग अलग, उसको आइसोबार बोलते हैं। ये हुआ है ना। तो उन्होंने किसको यूज किया बेटा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो आइसोटोप को यूज किया। ध्यान से सुनो, ध्यान से। उन्होंने एक बार क्या किया, एक बार उन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये जो ऑक्सीजन था, है ना, ये जो ऑक्सीजन था उसको लेबल कर दिया किससे, है ना, O18 से। मतलब कि O18 वाला वो जो हाइड्रोजन दिया, जो हाइड्रोजन था वो कैसा था, है ना, रेडियो एक्टिव था। उन्होंने जो है वाटर दिया था वो कैसा था, रेडियो एक्टिव। मतलब जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो कैसा था, रेडियो एक्टिव। और उसके बाद इन्होंने रिएक्शन देखा, और रिएक्शन के बाद उन्होंने क्या पाया, ये रिएक्शन पाया C6H12O6 प्लस O2। तो जब उन्होंने क्या किया था, जब वाटर को उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिवेटेड किया था, है ना, रेडियो आइसोटोप से एक्टिवेट किया था। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिबरेट हुआ था, जब उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्टडी किया गया तो इसके अंदर क्या पाया गया, O18। क्या पाया गया, O18। लेकिन जब उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्या है ऑक्सीजन है, उसको उन्होंने क्या किया, आइसोटोप किया, आइसोटोप से लेवल किया और वाटर को नॉर्मल रहने दिया, मतलब O16 वाला रहने दिया। 16 इसलिए हम लोग लिखेंगे नहीं। उसके बाद उन्होंने लेबल किया तो क्या देखने को मिला भाई, प्लस O2। और इसके अंदर ये नॉर्मल था, यहाँ पे जो था वो O18 था। ठीक है, इससे ये कंक्लूजन निकल गया, इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब हम वाटर को क्या करते हैं, आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप देते हैं, ठीक है, तो जो निकलने वाली ऑक्सीजन है उसमें भी जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रेजेंट होता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये साइंटिस्ट का क्लास वो था एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट जो होता है वो फिनिश्ड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द अर्लियर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अर्लियर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, क्या टॉपिक है, कोई बता सकता है क्या, एनसीईआरटी देखकर क्या टॉपिक है उसके बाद? Where does photosynthesis take place? ओके, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। इन्होंने ये बताया है कि भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। सो एज एवरीवन नो that photosynthesis take place in the green parts of plant, and you know what is the green parts, leaf and in some time stem also greening. So the photosynthesis take place in the green parts of plant, and the green part is leaf. So where does in the leaves में कहाँ पे होता है? तो इसके लिए जब क्या करोगे, कोई भी है ना लीफ है, उसको आप अगर उसके अंदर की स्ट्रक्चर्स को देखना चाहते हो तो साइंटिस्ट मतलब बायोलॉजी में, है ना, बायोलॉजी में एक पूरा प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो हम क्या करेंगे, जो भी लीफ हमको स्टडी करना है उसको ऐसे कट कर लेंगे और कट करके उसका स्लाइड बनाएंगे, और स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में जो होता है लिक्विड डाल करके देखेंगे। और जब हम लिक्विड डाल करके देखेंगे तो आपको जो है ना, लीफ को डाइसेक्ट करोगे तो आपको कैसा दिखेगा लीफ, तो दिखा रहा हूँ ध्यान से देखना। मतलब लीफ के अंदर पूरी उसकी डायमीटर कैसी दिखेगी, इस टाइप का, देखो। ठीक है, जब आप लीफ को क्या करोगे भाई, देखो यहाँ पे लीफ को डाइसेक्ट करते हुए दिखाया गया है, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, जब आप लीफ को डाइसेक्ट करोगे तो इसकी क्या दिखेगी, सबसे है ना 2 लेयर में आपको लीफ देखने को मिलेगा, और दोनों तरफ की जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, एपिडर्मिस बोल देते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। तो पूरी लीफ की जो थिकनेस होती है वो इतना ही होता है। उसमें सबसे बाहर वाली जो सेल्स होती है इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ये एपिडर्मिस है, ये वाली एपिडर्मिस है, और ये नीचे वाली एपिडर्मिस है, तो उसको अपन क्या बोल दिए, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। बोल दिए कि नहीं बोल दिए? ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes. और जस्ट
एपिडर्मिस के नीचे, है ना, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ कॉलम लाइक सेल्स। देखो यहाँ पे ऐसे कॉलम लाइक सेल्स देखने को मिल रहा है, ये सब यस क्या दिख सर। रहा है, कॉलम, है ना, एंड सम सर्कुलर सेल्स। यहाँ पे कुछ गोल गोल सेल्स, राउंड वाले सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और कुछ कॉलम टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। बेटा ये जो कॉलम टाइप की जो सेल्स होती है, कॉलम लाइक सेल्स होता है, इन दोनों सेल्स को, सर्कुलर और कॉलम, दोनों सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स। देखो वहां पे पूरा थिकनेस दिखाया गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीजोफिल सेल्स, ठीक है, पूरी थिकनेस को, ठीक है। यस सर। तो यस जब आप सर। तो जब आप लीफ को कट करोगे तो लीफ का जो दोनों साइड है ना, वो कैसा होगा, वो एपिडर्मिस है, उसके जस्ट अंदर आपको, है ना, दो टाइप के सेल्स दिखने मिलेंगे, अलग अलग सेल्स का। कौन कौन सा, एक तो होगा कॉलम लाइक सेल्स, और दूसरा जो होगा राउंड सेल्स। दोनों सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। और देखो आपको बीच में वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहा है, जाइलम और फ्लोएम, ये वाला, ये क्या है बेटा आपका वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम है, ये देखो, है कि नहीं। यस सर। यस सर। और देखो यहीं पे आपको स्टोमेटा भी देखने को मिल रहा है, दिस इज द स्टोमेटा, है ना, यहाँ पे स्टोमेटा है, पोर है, जहां से, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आना जाना करेगा। क्लियर है पॉइंट। अब ध्यान से सुनो Yes, बेटा, sir. देखो इधर बात, है ना, अगर आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, अगर आप जितने भी ये जो मीजोफिल सेल्स है, उनमें से कोई एक सेल्स को क्या करोगे, और ज्यादा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करोगे, और आप मतलब आप ये चाहोगे कि ना मैं इस मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या है उसको देखता हूँ। तो आपने क्या किया, कोई भी एक जो है कॉलम लाइक सेल्स, ये वाला जो है ना, उसको आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देखा, बड़ा करके देखा। तो बड़ा करके देखने में आपको क्या देखने को मिला भाई, ये आपको एक मीजोफिल सेल्स देखने को मिलेगा, जहां पे एक बड़ा सा वैक्यूल है, और देखो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है, कितने सारे क्लोरोप्लास्ट है, दिख रहा है आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और ये मीजोफिल सेल्स का न्यूक्लियस हुआ। तो कोई भी एक को अगर आप लार्ज करके देखोगे, तो उस सेल्स के अंदर, इस मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब आप इस क्लोरोप्लास्ट को क्या करके देखते हो भाई, देखो आप क्लोरोप्लास्ट को जब मैग्नीफाई करके देखोगे, ये वाले क्लोरोप्लास्ट को, तो ये क्लोरोप्लास्ट का पूरा क्या है भाई, स्ट्रक्चर है। चलो इसको अपन यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखो तो आपने क्या किया, आपने जो होता है ना, ये पूरा का पूरा इसका सेक्शन था, इनमें से आपने क्या किया, एक कॉलम सेल्स को मैग्नीफाई किया। जब आपने कॉलम सेल्स को मैग्नीफाई किया, तो इस कॉलम सेल्स को अंदर आपको इस तरीके से देखने को मिला, ठीक है। ये बड़ा सा पोर्शन क्या है आपका, वैक्यूल्स है। यहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है इस सेल्स में। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है जो कंट्रोल करता है, ठीक है, पूरे सेल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, ठीक है। और यहाँ पे बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स है। अब आप इंटरेस्टेड क्या हो कि मेरे को ना मीजोफिल सेल्स तो पता चल गया, अब मेरे को क्लोरोप्लास्ट के अंदर झांक करके देखना है। तो आपने फिर से क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर है उसको रोल करके और बढ़ा दिया। और जैसे ही आपने क्या किया, ठीक है, माइक्रोस्कोप में इस क्लोरोप्लास्ट को क्या किया आपने, ज्यादा मैग्नीफाई किया, तो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है भाई, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो उसके ऊपर आपको दो मेम्ब्रेन दिखेगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, और इसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आपको कौन सा मेम्ब्रेन दिखेगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब देखोगे बेटा झांक करके, तो पूरा का पूरा एक कंपार्टमेंट नजर आएगा, और वो कैसा होगा, ध्यान से देखना। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे, है ना, सिक्के के जैसे बंडल होते हैं ना, बंडल बनाओगे उसी टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, इस तरीके से, है ना, अ पाइल्स ऑफ कॉइन्स और अ बंडल ऑफ कॉइन्स। तो जब आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आपको सिक्के के बंडल के जैसे क्या देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक नहीं बहुत सारे बंडल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे बंडल, है ना, कई ज्यादा बंडल होते हैं। और ये सभी बंडल एक थ्रेड से, एक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है ये। और दूसरा क्या पाओगे, इसके अंदर जो होता है, इसका बाकी पूरा का पूरा कंपार्टमेंट, जो पूरा स्पेस है, वो लिक्विड से भरा होता है। इससे भरा होता है, लिक्विड से भरा होता है। यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट की अपनी खुद की डीएनए देखने को मिलेगी। क्लोरोप्लास्ट की खुद की डीएनए देखने को मिलेगी। आपको पता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है सबको, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना। इसका खुद का क्या होगा, राइबोसोम्स होगा, है ना, ये सब, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं।
तो इस तरीके से आपको इसमें कंपार्टमेंट नजर आएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट को देखो तो यहाँ पे दो कंपार्टमेंट है मेनली। एक तो है ये बंडल जैसे स्ट्रक्चर और दूसरा इसका लिक्विड पार्ट। ये जो बंडल जैसे स्ट्रक्चर है, इस बंडल जैसे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है, पूरे बंडल को क्या बोलेंगे? ग्रेना। तो एक ग्रेना, दो ग्रेना, तीन ग्रेना, पूरा का पूरा बंडल। और ये जो पूरा का पूरा जो लिक्विड स्पेस है, इसको अपन बोल देंगे स्ट्रोमा। क्या बोल देंगे? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। है ना, ग्रेना और स्ट्रोमा। ठीक है, बस दो ही। और यहाँ पे ये देखो बंडल्स को कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर है, इनको अपन बोल देते हैं, है ना, द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर, है ना, और द स्ट्रक्चर बिटवीन दी टू बंडल्स और टू ग्रेना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोल देते हैं इसको? स्ट्रोमल लैमेली। ये सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रोमल लैमेली, और वैसे भी आप इसको एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इतना क्लियर है सबको भाई? यहाँ तक सबको Yes, क्लियर है? sir. यस सर। चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। यस अब देखो बेटा, हम इंटरेस्टेड ये है कि भाई क्लोरोफिल कहाँ पे होता है या फोटोसिंथेसिस का। हमने ये तो पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है, मेसोफिल सेल्स की क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होता है, कितने स्टेप्स में होता है, कैसे कैसे होता है, अब वो हम सब समझेंगे पूरे डिटेल्स में इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो अगर आप क्या करोगे, ये जो सिक्के का बंडल है ना, पूरा मतलब सिक्के का बंडल नहीं, पाइल्स ऑफ कॉइन्स, है ना, मतलब कि सिक्के के बंडल के जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अपन ने ग्रेना बोल दिया। अब अगर इसमें से अगर आपने इसकी एक यूनिट को क्या कर दिया, निकाल दिया और इसको स्टडी करने लग गए, इनकी एक यूनिट को क्या करे आपने, स्टडी किया, इनको निकाल लिया और उसको देखने लग गए, तो ये कुछ ऐसा है इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, मेम्ब्रेन की बनी होगी। ठीक है, ये किसकी बनी होगी? मेम्ब्रेन की बनी होगी। ठीक है, ये पूरी मेम्ब्रेन की थिकनेस है। ये पूरी क्या है भाई? मेम्ब्रेन की थिकनेस है। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब इनमें से किसी एक को स्टडी करोगे आप, है ना, एक सिंगल को, तो सिंगल को क्या बोल देंगे? ग्रेनम। क्या बोल देंगे इसको? ग्रेनम। पूरे को क्या बोलेंगे बेटा? प्लूरल वर्ड है ग्रेनम। सिंगल को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और सबसे स्पेशल इसका नेम जो है, जो आप सबको पता होना चाहिए, वो है आपका, वो है थैलाकॉइड्स, है ना, थैलाकॉइड्स। ठीक है, थैलाकॉइड्स। ठीक है, ग्रेनल थैलाकॉइड्स आप इसको बोल सकते हो। तो जब एक थैलाकॉइड्स को, व्हाट इज अ थैलाकॉइड? सो इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड, इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, है ना, इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रेना। ठीक है, एंड द हॉलो स्पेस ऑफ थैलाकॉइड्स इज कॉल्ड ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमेन। और ये क्या है? इसका पूरा का पूरा ये क्या है? इतना मेम्ब्रेन है। क्या है ये? मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन है भाई? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना पॉइंट? यस सर। यस सर। चलो ये हो। अब भाई हम इंटरेस्टेड ये हैं कि भाई क्लोरोफिल कहाँ पे है। हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, लेकिन कहीं पर नहीं मिल रहा है। अब बताओ मेरे को, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है, बताओ। सर क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, मतलब प्लास्टिड के अंदर रहता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट है। Okay, so chlorophyll is a pigment in chloroplast is a cell organelle, and the chlorophyll pigment present or situated inside the chloroplast. ये तो क्लोरोप्लास्ट हुआ, इसके अंदर क्लोरोफिल होगा कहीं ना कहीं। तो क्लोरोफिल कहीं और नहीं होता, वो कहाँ पे होता भैया? ये थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन की, है ना, थैलाकॉइड जो होता है इसी के मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। सो द क्लोरोफिल, और यू कैन से द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे भाई? थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखो, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सॉरी एक थैलाकॉइड्स के अंदर, एक थैलाकॉइड्स के अंदर 400 से ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कितना?
400 से ज्यादा, है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट, या इसे क्लोरोफिल ना बोल के बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सो द सिंगल थैलाकॉइड्स कंटेंट 400 photosynthetic pigment, photosynthetic pigment, and these pigments are, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं भाई? सर एक बार वो Chloro- लाइन रिपीट करिए ना। फिल एक हाँ, in single thylakoids or in single thylakoids there are around more than 400 or approximately 400 photosynthetic pigment। मैं क्लोरोफिल बस नहीं बोल रहा हूँ, photosynthetic pigments are present, है ना, and these photosynthetic pigments, है ना, so these photosynthetic pigments are 4 types। So the first one is chlorophyll A, the second one is chlorophyll B, the second one is xanthophyll, the third one is xanthophyll, and the last one is carotenoids। carotenoid। Okay, so these are the 4 types of photosynthetic pigment, but the most important pigments are chlorophyll pigment, because it absorbs the specific wavelength of light। Light की specific wavelength को ये क्या करता है? Absorb करता है। So that's why। इतना क्लियर हो गया ये थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में कौन से पिगमेंट कैसे कैसे होते हैं? यस सर। Yes, sir. अभी तक ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? Okay, so this is the pigment, or this is the pigment, and this is the lumen, this is the membrane, thylakoid membrane, this is the grana, stroma, stromal lamella। बेटा स्ट्रोमल लेमिले में भी थैलाकॉइड्स होते हैं, तो स्ट्रोमा के अंदर पाए जाने वाले थैलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स। और ग्रेना के अंदर पाए जाने वाले थैलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं? ग्रेनल थैलाकॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनो। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बेटा, कंप्लीट प्रोसेस, कहां से कहां तक के? लाइट को कैप्चर करने से लेकर के ग्लूकोज बनने तक का जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज divided into 2 categories। The first one is called light phase or light reaction, and the second one is called dark reaction, या इसी को बायोसिंथेटिक पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन में, बायोसिंथेटिक पाथवे। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, या इसी को लाइट फेज बोल सकते हो, डार्क रिएक्शन या डार्क फेज, या फिर इसी को बोल सकते हो बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। 2 पाथवे होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है ना बेटा, ये लाइट डिपेंडेंट होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, लाइट होना ही चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, लाइट डिपेंडेंट। और ये होता है बेटा आपके ग्रेना में। कहाँ पे होता है भैया? ये ग्रेना में। जबकि आपका जो डार्क रिएक्शन है ना, ये जो होता है ना, डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लाइट रिएक्शन, डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लाइट रिएक्शन। बेटा जो डार्क रिएक्शन है वो ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में होता है ना, उसका मतलब समझो। ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन जो होता है लाइट के एब्सेंस में होगा। अगर ये आपका ऐसा थॉट है तो प्लीज उसको हटा दो, क्या है वो समझो। मैंने ये बोला कि जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंड में तो होगा ही होगा, बिना लाइट के पॉसिबल नहीं। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, वो इसकी वजह से उसको नाम नहीं दिया गया है क्योंकि ये डार्क कंडीशन में होती है, अंधेरे में चलती है, इसकी वजह से इसका नाम नहीं है। इसका नाम इसलिए ऐसा है डार्क रिएक्शन, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन के अंदर होने वाली जो क्या है रिएक्शन है, या जो भी काम होगा डार्क रिएक्शन पे, मतलब उस वाले फेज में, है ना, उसके लिए लाइट की जो अनिवार्यता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दी डार्क रिएक्शन। ये बिना लाइट के भी चल सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तो आप क्या स्टेटमेंट बोलोगे? द लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी, ठीक है, लाइट, ठीक है, एंड इट ऑकर्स इन द ग्रेना। एंड द डार्क रिएक्शन, है ना, द डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है, और अ डार्क फेज और डार्क
ठीक है, फेस, और यू कैन से हाँ डार्क फेस, इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट रिएक्शन, it does not directly depend on the light reaction, but it depends on the product of light reaction. It depends on the product of light reaction. That is important. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट पे तो डिपेंड नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड होता है। क्लियर है पॉइंट? कि कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपके पापा क्या कर रहे हैं, है ना, मतलब जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद आप भी जॉब करने लग जाओगे, आप भी कमाने लग जाओगे। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि मैं जो होता है वो अपने पापा पे डिपेंड नहीं हूँ, आपके पापा सेल्फ डिपेंड हैं। आपको भी लगेगा कि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ जब आप भी जॉब करने लग जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप इनडायरेक्टली आपके पापा के ऊपर ही डिपेंड हो। कैसे? क्योंकि वो आपको इतना पढ़ाया लिखाया है, आपके ऊपर इतने खर्च किए हुए हैं, तभी जाकर के आप क्या कर रहे हो भाई, तभी जाकर के आप खुद जॉब कर पा रहे हो। क्योंकि आप बिना पढ़े लिखे रहते तो जॉब नहीं कर पाते, आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती, प्रोफेसर का, डॉक्टर्स का या इंजीनियर्स का। ठीक है, तो हमको लगता है कि वी आर सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, वी आर एनीवेयर, है ना, वी आर एनी हाउ, वी आर डिपेंड्स ऑन दी अवर पेरेंट्स। ओके, तो सिमिलरली द डार्क रिएक्शन, ठीक है ना, occurs in the absence of light, but the dark reaction depends on the product of light reaction. Light reaction की product पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है। इतना समझ आया सबको? Yes, sir. ओके, सर पूछो। सर डार्क रिएक्शन का होता है? डार्क रिएक्शन होता है बेटा आपका स्ट्रोमा में। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा। So the dark reaction occurs in the stroma. Dark reaction occurs in the stroma. Clear a point? So the complete process of photosynthesis take place in the two places, the grena where light reaction occurs, and in the stroma dark reaction occurs. ठीक है? इतना Sir? पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ, सर स्ट्रोमा भी तो लीव में ही प्रेजेंट है, तो सनलाइट तो उसको भी मिल रहा है ना। उसको भी मिल रहा है बेटा, लेकिन उसके लिए जो है, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके लिए डायरेक्टली लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ओके सर। उनको डायरेक्ट लाइट नहीं। हाँ सर ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मिला के फोटोसिंथेसिस होता है कि दोनों हाँ, दोनों फोटोसिंथेसिस का दोनों अलग हाँ, अलग दोनों नहीं नहीं बेटा, दोनों एक ही है। ये कुछ ऐसा है कि दिन और रात दोनों अलग अलग होते कि नहीं होते हैं, दोनों के अंदर अलग अलग। एक दिन में क्या होती है, लाइट होता है, जबकि रात में लाइट नहीं होती है, लेकिन दोनों को मिलाकर के तो हम दिन बोलते हैं ना, एक 24 घंटे का डे बोलते हैं। Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से जो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में बटी हुई है। अब एक्चुअल में इसको ऐसा इसलिए बांटा सर गया है, इसका मतलब ये केवल सर समझने इसका की। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस रात में भी होता है? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो चीजों को, वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी मैं आपको एक इमेजेस दिखा रहा हूँ, इमेज, उस इमेज से आप इसको क्लियर समझ पाओगे। देखो ध्यान से सुनो, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस यहाँ पे जो होता है ये थैलाकॉइड्स है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपके थैलाकॉइड्स हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या किया है, ये वाला जो, ये देखो यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा है लाइट रिएक्शन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखा है लाइट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन डार्क रिएक्शन कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आपको पता है लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में। देखो ये ग्रेना है कि नहीं? यस सर। और जो बाकी पार्ट, हाँ, और जो लिक्विड पार्ट है वो क्या आपका स्ट्रोमा है। तो देखो ध्यान से क्या होता है, लाइट रिएक्शन में होता क्या है वो आपको एकदम ब्रीफ में बता रहा है कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर चलने वाली एक रिएक्शन है जहाँ पे लाइट को कैप्चर की जाती है। ठीक है, और वाटर को यूज किया जाता है इसी लाइट रिएक्शन में। ठीक है, इस ग्रेना के अंदर, और इसके बदले क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है वाटर से, और लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एटीपी और NADPH, एटीपी एंड NADPH। ठीक है, ये क्या है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, एटीपी एंड NADPH। नाउ दिस एटीपी एंड NADPH इज यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। बेटा डार्क रिएक्शन के अंदर जो चलने वाली जो क्या साइकिल है उसको अपन केल्विन साइकिल बोलते हैं, जहां से ग्लूकोज बनता है। तो एक्चुअल में बताओ मेरे को, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन में होता है, लाइट रिएक्शन में कि डार्क रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन। Dark reaction. डार्क रिएक्शन, बिकॉज दिस केल्विन साइकिल
है ना, occurs in the dark reaction and in the dark reaction, है ना, अगर आपको डार्क रिएक्शन को चलाना है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो होता है एटीपी और NADPH, जो एक तरीके की एनर्जी है, जो एक तरीके की क्या है भाई, एनर्जी है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ाई करना है तो क्या चाहिए, पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? यस अगर सर। आपको ना पैसे चाहिए नहीं, बिना पैसे के पढ़ाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि बुक्स तो खरीदने पड़ेंगे, कोचिंग तो करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पढ़ाई करना है, इट मीन्स अगर आपको केल्विन साइकिल चलाना है तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसा कौन है यहाँ पे, एटीपी और NADPH ATP के लिए, इस केल्विन साइकिल के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है ना, आपकी स्कूल्स भी जरूरी है, आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने के लिए। और लास्ट में आपका प्रोडक्ट क्या होगा, आप एक ग्रेजुएट होकर के निकलोगे, आपको जॉब मिल जाएगी, इट मीन्स शुगर। तो केल्विन साइकिल मतलब हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम जॉब पा जाते हैं, इट मीन जब केल्विन साइकिल चलता है तो शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, और वो पैसे एटीपी और ATP NADPH और NADPH। प्लस हमको कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दूसरे टीचर्स की जरूरत होती है, तभी ये पॉसिबल है, तभी क्या है ये पॉसिबल। तो बताओ मेरे को, चलो वाटर कहाँ पे यूज होता है, कौन सी रिएक्शन में यूज होता है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ठीक है। एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। एटीपी और NADP और NADPH का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन। ठीक है। CO2 का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? यूज। डार्क 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 रिएक्शन। रिएक्शन। और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. NADPH क्या है? हाँ, NADPH और ATP क्या है, तो देखो ये जो ATP और NADPH है, ये एक तरीके का आपका क्या है, ये एक तरीके की आपकी एनर्जी करेंसी है। और ध्यान से देखो, अब इधर देखो, मेरी बातों को सुनो, एक मिनट। जो ATP है बेटा, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी बताया था, जो एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। ये कुछ पैसे की तरह है, आपके पास जो पैसा होता है ना, करेंसी नोट, उसी की तरह है। और एक और चीज है क्या, NADP, इसका मतलब क्या है, NADPH क्या है, तो NADPH का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, रिडक्टेज। जो NADPH है उसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं। और ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोनों क्या है बेटा, एनर्जी करेंसी है, जिसके अंदर भरपूर अमाउंट में एनर्जी होता है। ये कुछ ऐसा है, वो आपको बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बोला था, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हाँ, ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन नहीं बेटा, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट। हम ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इज द मेन Main सोर्स product. ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये बात बोलते हैं ग्लूकोज के लिए। Yes, sir. लेकिन हम यहीं पे जो है ये भी पढ़ रहे हैं कि ATP और NADPH ये भी जो होता है सोर्स है एनर्जी का, इसके अंदर ये करेंसी है, ठीक है, एनर्जी करेंसी है। हर सेल्स को जो है ATP और NADPH चाहिए, लेकिन हर सेल्स को, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्लूकोज भी चाहिए। तो दोनों जो होता है एनर्जी की तरह, एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर सकता है। तो फिर दोनों को फिर ग्लूकोज बनाने की जरूरत क्यों है भाई? ATP और NADPH तो लाइट रिएक्शन में बन जाता है, तो फिर डार्क रिएक्शन में एक्स्ट्रा, है ना, पूरा का पूरा कंसर्ट करके काम करके हम ग्लूकोज ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि लाइट रिएक्शन में तो ATP और NADPH बन जाता है। तो भैया डार्क रिएक्शन एक नया स्टेप, एक आगे वाली स्टेप चलाने की क्या जरूरत, ATP और NADPH बना करके रुक जाए, क्योंकि लाइट से ATP और NADPH तो बन जा रही है लाइट को यूज करके। लेकिन हम ATP और NADPH को डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करके ग्लूकोज क्यों बनाते हैं, ग्लूकोज क्यों बनाते हैं, तो वो समझते हैं अपन लोग। ध्यान से सुनो, इसको मैं तुमको एक कहानी की तरह समझा रहा हूँ। देखो भाई, आपके पास जो, आपके घर में जितने भी पैसे हैं, है ना, पैसे इट मीन्स करेंसी, है ना, जितने भी करेंसी आपके पापा आपके पैसे मतलब आपके जॉब के थ्रू जो है जितना पेमेंट उनको मिलता है, या जो भी वो काम करते हैं एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस हो, या वो कोई टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, या फिर वो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको पैसे मिलता है, ठीक है। अब दो ध्यान से क्या होता है, सुनो ध्यान से, क्या कि वो जो पैसा है ना,
दैट इज अ करेंसी, नोट के फॉर्म में हो सकता है, सिक्कों के फॉर्म में हो सकता है। वो क्या है आपका एटीपी और NADPH की तरह है, जो है ना जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे उसको जा करके हम दे देते हैं और फिर क्या होता है हमारा काम पूरा हो जाता है। तो जैसे ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कॉपी पेन खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड है ना, जो क्या है अपना प्रोडक्ट है वो परचेस करने के लिए, डेली प्रोडक्ट परचेस करने के लिए हम पैसे यूज करते हैं, पैसे देते हैं और हमको क्या मिल जाती है, वो प्रोडक्ट मिल जाता है, अपना हमारा काम पूरा हो जाता है। सिमिलरली इनसाइड दी सेल्स, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन को, हर काम को करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए रहता है तुरंत, एक चीज दो दूसरे चीज दो, तो वो है आपका एटीपी और NADPH। आप जहां पे भी एटीपी और NADPH दोगे तुरंत वहां पे आपका काम पूरा हो जाएगा, मतलब वो एनर्जी देने का काम करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो एटीपी और NADPH वो ऐसा ही है जैसे आपके पास रुपीज है, आपके पास जो करेंसी है उसको दिया, आपका काम पूरा हो गया। तो जितने भी सेल्स हैं वो अपना काम पूरा करने के लिए एटीपी और NADPH को यूटिलाइज करते हैं। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, अब आपको पता है, अब आपको पता है वो जो पैसा है वो क्या है भाई, टेम्पररी है। टेम्पररी कहने का मतलब वो तो आता जाता, आना जाना लगा रहता है उसका, किसका, पैसे का, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी आता है कभी चला जाता है। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, अगर आपको सपोज आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपके पॉकेट खर्च के साथ साथ आपको जो होता है एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, क्या कहीं ना कहीं आपने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसे अपने घर में रख लिए, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो पैसे अनवांटेड दूसरी चीजों पे यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपकी जो होता है अनवांटेड प्रोडक्ट परचेस करना शुरू कर दिए, हो सकता है आप जो होता है गैम्बलिंग करने लग गए, है ना, जुआ खेलने लग गए, है ना, हो सकता है आप जो है ड्रग्स खरीदने लग गए, आप है ना ड्रिंकिंग करने, स्मोकिंग करने लग गए। तो एक्स्ट्रा पैसे आ जाने की वजह से उसका यूटिलाइजेशन भी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? Yes, Obvious सी sir. बात है, Yes, बढ़ sir. जाएगा। yes, sir. सिमिलरली इनसाइड दिस सेल, अगर आवश्यकता से अगर ज्यादा एटीपी और NADPH बन जाता है तो वो फिर जो होता है बेकार का जो है दूसरी चीजों में खर्च हो जाता है जहां पे नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है हमारी बॉडी में एटीपी और NADPH तभी प्रोड्यूस होता है जब उनको जरूरत होती है, जब किसी सेल्स को किसी रिएक्शन के लिए जरूरत होती है तभी उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है। क्लियर है पॉइंट? तो फिर Yes. हमारी, हाँ, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट के द्वारा अभी आपने जो देखा एटीपी और NADPH बनाया जा रहा है, तो इसको तुरंत बनाया जाएगा, फटाफट फटाफट बनाया जाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर प्लांट ने क्या किया, एटीपी और NADPH धड़ल्ले से बनाना शुरू कर दिया, तो मैंने आपको बताया एक्सेस अमाउंट में जैसे एटीपी NADPH बनेगा और उसका प्रॉपर आगे कोई है ना प्रोटेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत के तुरंत इधर उधर की चीजों में या अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अनवांटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। कौन? आपका एटीपी और NADPH। NADPH. अब जैसे आपके घर में आपके बहुत सारे पैसे आए, ठीक है, आपके घर में क्या हुआ, बहुत सारे पैसे आए, तो आपको पता है, आपके पेरेंट्स को पता है कि ये पैसा टेम्पररी है, अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रहा है तो कहीं ना कहीं इधर उधर खर्च होता रहेगा, तो वो तुरंत क्या करता है, उस पैसे को उठाता है, जितना जरूरत है उसको ले जाकर के या तो उसका गोल्ड परचेस कर लेता है, या प्लॉट परचेस कर लेता है, या फिर जो होता है ना कोई फ्लैट खरीद लेता है, खरीद लेता है कि नहीं, ऐसा होता है जनरली। Yes, sir. Yes, sir. It means you are स्टेबलिंग योर करेंसी, योर रुपीज, योर वेल्थ। आप अपनी संपत्ति को स्टेबलाइज कर रहे हो, स्टेबल कर रहे हो, फिर सुरक्षित कर रहे हो कि आगे फ्यूचर में काम आ जाए, जब कभी भी जरूरत हो तो हम गोल्ड को, प्लेटिनम को, डायमंड्स को या जो भी खरीदे हैं उसको बेच करके हमको तुरंत पैसे मिल जाएगा। दैट इज योर फॉर सिक्योरिटी इन योर फ्यूचर। तुम्हारे फ्यूचर में जो होता है वो तुम्हारे लिए सिक्योरिटी की तरह काम करेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या पूरे के पूरे पैसे को आपके पापा जो है वो गोल्ड खरीद देते हैं? नहीं, जितना भी अमाउंट उसको मिलता है उसका वो 60 to 70% क्या करता है, उसको है ना स्टेबल कर देता है और बाकी 20 to 30% से आपका काम चलाते रहता है। सिमिलरली सेल्स के साथ भी यही होता है, ठीक है, कि क्यों हम ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज भी एनर्जी का काम करता है और एटीपी भी एनर्जी का काम करता है, लेकिन एटीपी तो बहुत आसानी से लाइट से बन जा रहा है, जबकि हमको ग्लूकोज बनाने के लिए पूरी पूरी एटीपी लगानी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लगाना पड़ता है, बहुत सारे एंजाइम्स प्लस स्ट्रोमा, बहुत सारा नाटक होता है। तो हम क्यों ग्लूकोज बना रहे हैं? सिमिलरली वैसे ही आपको तो पैसे मिल गया, लेकिन आप जब जमीन खरीदने जाओगे, गोल्ड खरीदने जाओगे तो उसके बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, इतनी आसानी से आपको जमीन मिलने वाली नहीं है, जमीन का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। Yes, यस sir. सर। आप क्यों जो है जमीन खरीदना चाह रहे हो? इट मीन्स आप ग्लूकोज क्यों बनाना चाह रहे हो? इट्स वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस स्टेबिलिटी
for the use in future, for the protection, for the security in future. अब प्लांट को ये बात पता है कि भाई मेरे से ही सबका खाना, मेरे ऊपर ही सब खाने के लिए डिपेंड है। अगर मैंने एटीपी और एनएडीपीएच बना करके उसको उसी फॉर्म में रखा तो मेरे बॉडी में ही यूटिलाइज हो जाएगा या व्यर्थ की चीजों में यूज हो जाएगा। सिमिलरली ऐसी पेरेंट्स आपके हैं, है ना, पेरेंट्स को पैसे मिला, अगर ज्यादा मात्रा खर्च हो जाए वो आपके लिए फिर नहीं बचा पाएंगे पैसे। तो इसके लिए फिर प्लांट क्या सोचता है कि ये जो मैं एटीपी और एनएडीपीएच बना रहा हूँ ना, उसको किसी ऐसे स्टेबल प्रोडक्ट में बना दूं, कन्वर्ट कर दूं कि वो आगे मेरे जनरेशन टू जनरेशन, मेरे को खाने वाले या उससे उनको खाने वाले में वो ट्रांसफर होता रहे और सभी को एनर्जी मिलती रहे। तो इसके लिए वो क्या करता है, एटीपी और एनएडीपीएच को, है ना, डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करके एक एक्स्ट्रा साइकिल में चलने वाली रिएक्शन जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसको वो यूटिलाइज करके क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। एटीपी और एनएडीपीएच को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपका पेरेंट्स जो होता है, ठीक है, जैसे कि आपका पेरेंट्स जो पैसे होते हैं, रुपीज है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, गोल्ड या फिर, है ना, फ्लैट में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से ये स्टेबल है। अब इसको आप सुरक्षित हो जाएगा आपके लिए, आप फ्यूचर में आपका काम आ सकता है, आपके पेरेंट्स का काम आ सकता है, आपके पढ़ने, एजुकेशन, सब चीजों के लिए काम आ सकता है। लेकिन अगर आपने इसको स्टोर नहीं किया तो पैसे खर्च हो जाएगा, तो स्टोर नहीं होगा तो आपका काम नहीं आएगा। सिमिलरली this ATP is not, it cannot be utilized by the other living organisms if it is formed. अगर ये बनाया जाएगा, केवल इसको स्टोर नहीं किया जाएगा, तो इसका यूज केवल प्लांट कर सकता है। लेकिन अगर इसको हमने स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया तो ये भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अंदर सोचो, इसको जब आगे फ्यूचर में ब्रेक करेंगे तो फिर से एटीपी मिलेगा। इसको अगर हमने क्या Yes, किया, sir. एटीपी से ग्लूकोज बनाया, मतलब कि एटीपी का जितना एनर्जी है वो ग्लूकोज में स्टोर है। लेकिन जब ग्लूकोज से हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो हमको जो है क्या मिल जाएगा भाई, एटीपी मिल जाएगा। ATP. जैसे कि आपके रुपीस को आपने गोल्ड में कन्वर्ट किया, लेकिन जब उसको आपने क्या किया, किसी गोल्ड स्मिथ या फिर जो होता है ना, ज्वेलरी दुकान में गए और उसको बेचे, तो आपको फिर से रुपीस मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो इसी तरीके से कुछ जो होता है, ये ग्लूकोज, एटीपी, इन सब का क्या है, कॉन्सेप्ट है। समझ आएगा इतना? तो क्यों ग्लूकोज बनाया जाता है और कहाँ पे एटीपी और ग्लूकोज बनती है, इतना सबको क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, ये था आपका वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। इसके बाद है एक और टॉपिक है, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में टोटल कितने पिगमेंट्स होते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताया 4 पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। अब बेटा जब इसका कलर देखोगे तो ध्यान से सुनो, एक मेथड होता है, सुनना ध्यान से, आप लोग जा करके रीड करना। एक वो है आपका एक टॉपिक है, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो वहां पे बताया गया है कि एक मेथड है ना, जिससे हम पता लगाते हैं कि कितने पिगमेंट होते हैं और उनका कलर क्या होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है, इसी की मदद से हम क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। क्रोमेटोग्राम एक डिवाइस है और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि प्लांट के अंदर कितने टाइप के पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो 4, ठीक है। क्लोरोफिल ए का पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो कलर क्या आता है, पेपर में उसका कलर आता है आपका ब्राइट ब्लू ग्रीन, ठीक है। जबकि जो क्लोरोफिल बी है उसका येलो ग्रीन, और जो ज़ैंथोफिल है उसका येलो, और जो कैरोटीनॉइड्स होता है उसका जो होता है ऑरेंज टू, है ना, रेड, और येलो टू येलो ऑरेंज आता है, ठीक है, किसका, आपका कैरोटीनॉइड्स का। तो वहां पे पूरा लिखा हुआ है, उसको आप एक बार पढ़ लेना। और वहां पे जो ग्राफ है उसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे बेटा, ये जो लाइट रिएक्शन और जो डार्क रिएक्शन है, कि कैसे लाइट कैप्चर होता है ना, थैलाकोइड्स में ऐसा क्या हो जाता है कि वाटर को ब्रेक होना पड़ता है, ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है, एटीपी और एनएडीपीएच कैसे बनती है, ग्लूकोज कैसे बनता है, उसी को अपन को क्या करना है, पूरे डिटेल्स में पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल है, याद रखना, पहले से आप जितना ही पढ़े उससे कहीं ज्यादा डिटेल है। इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, सो चलो ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर Thank क्लास you, फिनिश sir. करते हैं, Thank you, आपका sir. क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.